आतंक के चंगुल में 18 महीने बिताने वाले डॉक्टर का बड़ा खुलासा। These people approached me because I am the doctor. They want some staff in their hospitals. वीडियो दिखाकर दिमाग में खौफ भरता है ISIS। इस्लाम के नाम पर ब्रेन वॉश करता है बगदादी। They are using these suicide bombing belts. That belts are very powerful. It can do damage, injuries to nearly 100 people. जबरन धर्म परिवर्तन करने को मजबूर करता है ISIS। बगदादी की आतंकी फौज में है पढ़े लिखे नौजवान। भारत के बारे में सब कुछ जानते हैं बगदादी के आतंकी। These ISIS people are well educated youngsters, most of the people, and they knows about India. बगदादी के लड़ाकों ने डॉक्टर को 10 दिन में 3 बार मारी गोली। In 10 days, I got bullet injuries to my hand, left hand, and my both legs. लीबिया में बगदादी के आतंक का पहला चश्मदीद। बगदादी के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही। After 10 days in that building, this military came up very near to our building. एक भारतीय बोलेगा ISIS की पोल खोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जी हां, बगदादी के आतंक का पहला चश्मदीद भारतीय डॉक्टर राममूर्ति। ISIS की आतंक की कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन आज हम आपको ISIS के आतंक को बेहद करीब से देखने वाले चश्मदीद से मिलवाने जा रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर राममूर्ति। ISIS के चंगुल से छूटे भारतीय डॉक्टर राममूर्ति कोसानम ने 18 महीने तक आतंक का खौफ और दर्द दोनों झेला है। पूरी दुनिया में आतंक का सबसे खौफनाक चेहरा कहे जाने वाले ISIS को भारत के डॉक्टर ने बेहद करीब से देखा है। 18 महीने तक आतंक की कैद में रहने वाले डॉक्टर राममूर्ति कोसानम को ISIS के चंगुल से छुड़ा लिया है, लेकिन 18 महीने तक डॉक्टर राममूर्ति ने आतंक के जहन्नुम में दर्दनाक यातनाओं को झेला है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर कोसानम 1999 में लीबिया में बतौर डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे थे, लेकिन 18 महीने पहले जो हुआ उसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। My name is Kosanam Ramamurthy. I am doctor. My profession wise, when I am doing my job in Sirte town, Libya, I am in my room. One day these Daesh people came, that is ISIS or Islamic Dawliya people. They told me that you come down to our car, which is near front of the building. So when I am put up my dress and I following them, I joined. I have seen another Indian. They are already he is on the staircases. They took to their
controlled jail, that is the Ansar jail, which is in the center of the Sirte town. This organization people forced us to see their video. It is a little bit difficult to see that videos. आईएसआईएस की कैद में आने के बाद डॉक्टर राममूर्ति की दूसरे भारतीयों से मुलाकात हुई जो पहले से आईएसआईएस के चंगुल में फंसे हुए थे। डॉक्टर होने की वजह से आईएसआईएस के आतंकियों ने डॉक्टर राममूर्ति को मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि अपने घायल आतंकियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। These people approached me because I am the doctor. They want some staff in their hospitals, doctors and nurses. So they requested me to come and work in their organization hospitals. So I refused because my age is big, nearly 60, above 61 at that time. And I am suffering with a backache, that is disc prolapse, with right leg nerve pain, that is sciatica pain, and with the heart problem and hypertension. आतंकियों के चंगुल में फंसे डॉक्टर राममूर्ति को ये पता था कि जिंदा रहने के लिए जो उनसे कहा जाए वो करना जरूरी है, इसलिए डॉक्टर राममूर्ति को इस्लाम के नियम पालन करने के लिए कहा गया। ISIS organization people came to us and they want to teach some about Islam and how to pray. They are this organization people very strictly following their organization rules and regulations and code and conduct, and praying time very perfectly they are following. After that they are teaching some Quran, some lectures. सर्जन न होने के बावजूद डॉक्टर राममूर्ति अपनी जान बचाने के लिए आईएसआईएस के अस्पताल में रात की नौकरी कर रहे थे। तभी अचानक एक रात लगी गोलियों ने राममूर्ति को छलनी कर दिया। When I am doing my job in this camp hospital, within 10 days I got bullet injuries to my left hand and my both legs, thigh areas. अपने आतंक को पूरी दुनिया में फैलाने की ख्वाहिश रखने वाला आईएसआईएस भारत में भी अपने पैर फैलाना चाहता है। These ISIS people are well educated youngsters, most of the people, and they knows about India development and all the things. What I understood is they want to spread their ideology of that organization. आईएसआईएस के चंगुल में फंसे डॉक्टर राममूर्ति के लिए एक सुबह आर्मी देवदूत बनकर आई और लीबिया से छुड़ा कर ले गई, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। आर्मी ने डॉक्टर राममूर्ति को इंडियन एम्बेसी में बात करने को कहा और फिर शुरू हुई रिहाई की कोशिश। भारत सरकार की मदद से आईएसआईएस के चंगुल में फंसे डॉक्टर राममूर्ति सही सलामत भारत आ चुके हैं और आतंक की गिरफ्त में 18 महीने की यातनाएं झेलने वाले डॉक्टर राममूर्ति अब आतंक के खौफ से आजाद हैं। लेकिन लीबिया और सीरिया के लोगों की आतंक के खौफ से आजाद कराने की लड़ाई अब भी जारी है।